All right. Welcome back, everyone. और फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। Everyone's doing fine? सभी ठीक हैं? All right. So we are going to learn how to meditate in God's Word. और अभी हम इस बात को सीखने वाले हैं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकते हैं, How to sow the seed of that Word in our hearts. और किस प्रकार परमेश्वर के वचन के बीज को अपने हृदय के अंदर में हमें बोने की आवश्यकता है। Right? Let's look at one more scripture. और आइए हम एक और वचन को पढ़ें। In 1 Timothy chapter 4 पहला तीमुथियुस 4 अध्याय and verse 15. और 15 वचन। 1 Timothy chapter 4 and verse 15. पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका वचन। Somebody could read it, please. कोई भी पढ़- Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Okay. So Paul is writing to Timothy और पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है and he's giving him a lot of instruction. और बहुत सारे निर्देश उसको दे रहा है। And then in my version of the Bible, he says, meditate on these things. और वो उस बात को कह रहा है कि इन बातों पर मनन कर या ध्यान लगा, Meditate on these things और इन बातों पर ध्यान लगाए रहे and give yourself completely to them. और पूर्ण रीति से अपने आप को उन्हें सौंप दे, And your progress will become evident to everybody. और तेरी जो उन्नति है वो सब पर प्रकट होगी। So he's saying, Timothy, I want you to, just focus on these things, meditate on these things. और वो कह रहा है तिमोथी, मैं चाहता हूं कि तू इनके ऊपर में अपने ध्यान को लगाए रहे, इसके ऊपर में मनन कर, लगातार ध्यान करता रहे। And then people will see your progress. They will see how you are growing and improving and advancing. और लोग इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार तू उन्नति करता जा रहा है, किस प्रकार तू विकास करता चला जा रहा है। So both in the Old Testament and New Testament, we are encouraged to meditate. और देखिए दोनों नियमों के अंदर में, पुराने नियम में और नए नियम में भी हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हमें मनन करना है, ध्यान लगाना है। All right? So now we want to learn how to meditate. और अब हम सीखेंगे किस प्रकार हम मनन कर सकते हैं। Now in the Old Testament, पुराने नियम में when they started practicing meditation in God's Word, और जब वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान करने या मनन करने का अभ्यास करते, this is how they would do it. और देखिए इस प्रकार करते थे वो लोग। The person would sit quietly by और- himself. और जो व्यक्ति है वो चुपचाप एक स्थान पर बैठेगा। Many times they will have a shawl over their head so that they're not distracted by anything. और कई बार वो अपने सर पर एक चादर को डाल लेते थे ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। Sometimes they call it a prayer shawl. और उसको प्रार्थना का शॉल या चादर बुलाते थे, कहा जाता था। They'll have the scriptures और उनके पास वचन होते थे and they will keep repeating the scriptures. और उन वचनों को वो दोहराते रहते थे। And many times they'll rock back and forth और कई बार दोहराते दोहराते वो ऐसे आगे पीछे with their mind होते रहते थे। with their mind fully focused on those scriptures. और लेकिन उनका जो मन है वो पूरी रीति से वचन के ऊपर में लगा रहता। This is how they used to practice. और इस प्रकार से पुराने नियम में अभ्यास किया जाता था। And when we study the Hebrew words that are translated meditate, और देखिए जब हम इब्रानी शब्द जो मनन या ध्यान करने के लिए अनुवादित किया गया है, there are three main things we understand. और 3 मुख्य बातें हैं जो हम उसमें समझते हैं। And I will use the English words. I don't know how it is translated in Hindi. But first,
contemplation, that is to think deeply, to focus. और पहला जो है गहराई के साथ ध्यान केंद्र करके उस पर सोचना, ध्यान करना। Second, और दूसरा, visualization, that means you picture it in your mind. और दूसरा है कि आप अपने दिमाग में एक आकृति बना लें, एक तस्वीर बना लें। And third is confession, you say it with your mouth. और तीसरा, आप अंगीकार करें, अपने मुंह से उस बात को स्वीकार करें। So in meditation, और मनन करने में we are doing these three things: और हम ये तीन बातें करते हैं। contemplation, और सबसे पहला गहराई के साथ उसमें हम ध्यान करते हैं, visualization, और दूसरा है हम उसको तस्वीर अपने दिमाग में बनाकर देखते हैं, and third, confession or declaration. और तीसरा जो है हम अंगीकार करते हैं, मुंह से उसका उच्चारण करते हैं। Let's go to Proverbs chapter 4, नीति वचन उसका 4 अध्याय में चले, because these verses here, Proverbs 4:20 to 22, they capture what we are saying. और देखिए नीति वचन 4 उसके 20 से 23 में जो हम कह रहे हैं उनका वर्णन किया गया है। Proverbs 4:20 to 22. और नीति वचन 4 उसका 20 से 22। My son, be attentive to my words, incline your ear to my saying, let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them and healing to all their flesh. Notice, God is speaking through Solomon here. और देखिए आपने ध्यान दिया होगा परमेश्वर सोलोमन के द्वारा यहाँ पर क्या बात कर रहा है। It says, give attention to my words. और कह रहा है मेरे वचन को ध्यान दे। So that's contemplation. और वो है गहराई के साथ उस पर ध्यान देने की बात। Full attention और पूर्ण ध्यान on the word of God. परमेश्वर के वचन पर। You're listening to his sayings. और आप उन बातों को जो वो कह रहा है सुन रहे हैं। Then verse 21. और फिर 21वां पद, Do not let them depart from your eyes. और इनको आंखों से ओझल मत होने दे। That is what you're seeing, और इसका मतलब जो आप देख रहे हैं what you visualize. और जो आप अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बना रहे हैं, Don't let them depart from your eyes. और उन्हें अपनी आंख से ओझल मत होने दो। Right? Now, practically think about it. और आप व्यवहारिक रीति से इसके बारे में जरा सोचिए। I can't hold my Bible in front of me and keep walking around. God said, don't let his word get away from my eyes. और देखिए मैं बाइबल को अपनी आंख के सामने ऐसा रखकर चलता हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐसे अपनी आंख से ओझल मत होने देना। And that's not what he said. और परमेश्वर का मतलब ये नहीं है। When we are walking with our eyes, we are seeing what is around us. और देखिए जब हम चलते हैं अपनी आंखों से अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, But in my mind's eye, लेकिन मेरे मन की आंखों में I have the word of God painted in my imagination. और परमेश्वर का वचन मेरी कल्पनाओं में छपा हुआ है। Amen. आमीन। Everything God has said about me, और हर एक चीज, हर एक बात जो परमेश्वर ने मेरे बारे में कहा है, those are the pictures that are painted on my imagination. और वो सारी तस्वीरें हैं जो मेरी कल्पनाओं के अंदर में छपी हुई हैं। With our natural eyes, we are seeing things around us. Of और course. अपनी स्वाभाविक आंखों से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, But in the eyes of our minds, लेकिन हमारे दिमाग, मन की आंखें his word is there. और उसका वचन वहां पर है। You understand? आप समझ रहे हैं? So that is visualization. और वो है अपनी आंखों में, विचारों में तस्वीर बनाने का मतलब। You know, when God speaks to us, throughout the Bible, we see this. When God speaks to us, और हम पूरी बाइबल में इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, he paints beautiful pictures. और परमेश्वर बड़ी सुंदर तस्वीरों को बनाता है। For example, और उदाहरण के लिए God called Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। Said, Abraham,
through you, I will bless, you're going to be the father of a multitude. I will bless the nations through you. और परमेश्वर ने उसे बुलाकर कहा कि तू जातियों का पिता होगा, तेरे द्वारा सब जातियां आशीष को पाएंगी। So he gave a promise. परमेश्वर ने उसे वायदा दिया। 15 years later, और 15 साल के बाद में Abraham is struggling. और अब्राहम को तकलीफ हो रहा है। You gave me a word, और आपने मुझे वचन दिया, but I'm not seeing it. और मैं देख नहीं रहा हूं। Then in Genesis 15, और उत्पत्ति 15 में God does something very interesting. परमेश्वर ने एक बड़ी रुचिपूर्ण कार्य को किया। One night, और एक रात्रि God says, Abraham, come out of your tent. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने तंबू से बाहर आ Look up in the sky. और आकाश की ओर आंखें लगा। So Abraham looks up in the sky, और अब्राहम आकाश की ओर देखता है, clear sky, और एकदम साफ आसमान है, many stars. और बहुत असंख्य तारे हैं। God says, Abraham, और परमेश्वर कहता, अब्राहम, that's how many descendants you will have. और उतने ज्यादा वंशज तेरे होंगे। Then Abraham took out his cell phone, और अब्राहम ने अपना सेल फोन निकाला और took one picture, एक तस्वीर खींच ली, put it in his mind. अपने दिमाग में चिपका लिया। God said, परमेश्वर ने कहा है, that's how many my descendants will be. और उतने ज्यादा वंशज जो है वो मेरे होने वाले हैं। Amen. आमीन। Every time he had a doubt, और जब कभी उसे संदेह आता, nighttime, रात में look in the sky. और आसमान को देख लेता। God said, परमेश्वर ने कहा है, that's how many my descendants will be. और उसी प्रकार मेरे बहुत सारे वंशज होने पर हैं। What am I trying to get at? और मैं यहाँ पर क्या प्रयास कर रहा He हूँ? was able to visualize the promise of God. और वो परमेश्वर के वायदे को अपने मन के अंदर में देख पा रहा था। Second picture God gave him, और दूसरी तस्वीर परमेश्वर ने दी, Abraham, अब्राहम, your descendants और will, तेरे वंशज will be like the sand on the seashore. और वो समुद्र के किनारे के रेत के कंकड़ों के समान होंगे। Imagine, और कल्पना करके देखें, sand on the seashore. और How- समुद्र के किनारे की रेत के समान होंगे, Can't count. और उसे गिना नहीं जा सकता। So Abraham just play with the sand. और अब्राहम उस रेत से खेलता होगा, This is how many my descendants will be. और मेरे जो वंशज है वो इतने ज्यादा होंगे। Anytime he had a doubt, और जब कभी उसको संदेह होता, so many descendants. और वो रेत को उठाकर ऐसे देखता होगा, कहता होगा बहुत से वंशज होंगे। God said it. परमेश्वर ने कहा है। So he was able to visualize the promise. और वो उस वायदे को अपने मन में देख पा रहा है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? So part of meditation is God said, don't let my word depart from your eyes. और देखिए, मनन करने का एक भाग ये भी है कि परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन को तेरी आंखों से ओझल मत होने देना। In your imagination, और तुम्हारी कल्पना के अंदर you में, must see my word. और वो मेरे वचन को देखें। Amen. आमीन। And the third is what you're saying, your declaration. और तीसरा, आप जो कहते हैं, आपकी घोषणा। Right? So did you understand these three things? We'll talk more about it, each one of them, but do you understand these three things? और हम इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन ये तीन बातों को आप समझ पाए हैं? First, पहला, contemplation. और वो है हम गहराई में उतरें। That means you're giving full attention to the word of God. You're thinking deeply about the word of God. और इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में पूरा अपने ध्यान को लगाएं, परमेश्वर के वचन में और गहराई से उतरने पाएं। You know, you're not listening to anything else. You listen to the word. और आप किसी और को अपना कान नहीं देते, आप केवल परमेश्वर के वचन पर अपना कान लगा के रखते हैं। Second, दूसरा, visualization. और आप अपने मन में उसकी तस्वीर को बना लेते हैं, You're letting his word be in front of your eyes. और उसका वचन आपकी आंखों के सामने बना रहे। In your imagination, you're seeing that word fulfilled. और आप अपनी कल्पनाओं के अंदर में उस वचन को पूरा होते हुए देख पाते हैं। And third, और तीसरा, confession or declaration.
और आपके मुंह का अंगीकार, आपके मुंह से उसकी घोषणा। God told Joshua, don't let it depart out of your mouth. परमेश्वर ने यहोशू से कहा तेरे मुख से वो दूर ना होने पाए, It must always be there in your mouth. और हमेशा तेरे मुंह के अंदर में वो बना रहना चाहिए, Keep saying it, keep saying it, keep saying it. और उसे बार बार बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। All right? ठीक है, So let's practice it. और होके इसका अभ्यास करें। Let's go back to Psalm 1. और आइए हम भजन पहले अध्याय में वापस चलते हैं। We read Psalm 1 verses 1, 2, and 3. और पहला अध्याय उसका 1, 2 और 3। Now, let's say, for example, और हो के उदाहरण के लिए मान लेते हैं, maybe I'm a person where I have seen a lot of failure in my life. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हो सकता हूं जिसने अपने जीवन के अंदर में बहुत सारी असफलताओं को देखा होगा। I have tried many things, have not succeeded. और मैंने बहुत सारी चीजों में प्रयास तो किया, लेकिन मैं किसी बात में सफल नहीं हुआ। Everybody has told me, you're a failure. और सब मुझे कहते हैं तू तो असफल है, बेकार है। Maybe my parents said, you're such a failure, you didn't pass any exam. और देखिए, हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने कहा होगा कि तू तो बेकार है, कोई भी परीक्षा तू पास नहीं कर पाया, You will never succeed in anything. और तू किसी बात में कभी सफल नहीं हो पाएगा। So imagine, I'm like a person like this. और आप सोचिए, मैं इस प्रकार का एक व्यक्ति हूँ। How can I have God work in my life to change all this? और कैसे मैं परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में कार्य करने दूं कि ये सारी चीजें बदल जाएं? How does God work? और परमेश्वर कैसे काम करता है? He works by His word. और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कार्य करता है। Amen? आमीन। So I'm reading my Bible और मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा हूँ, and I come to Psalm 1. और मैं भजन संहिता पहले अध्याय में आता हूँ। God says, परमेश्वर कह रहा है, blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the ungodly. और वो कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, He doesn't stand in the way of sinners. और पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता है, He doesn't sit in the seat of the scornful. और वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। Say, God, I am like that person. और मैं कहता हूँ परमेश्वर, मैं तो ऐसा ही व्यक्ति हूँ। I don't want to do anything with sin and speaking bad about others, and I don't participate in all those things. और मैं इन सारी बातों में भाग नहीं लेता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, किसी का ठट्टा नहीं करता, मैं पाप नहीं करता। Then verse 2 और उसके बाद दूसरा वचन says, delight is in the law of the Lord. और वो कहता है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। So God, I delight in your word. परमेश्वर, मैं आपके वचन पे प्रसन्न रहता हूँ। All my life till this point, I've been like a failure. और मैं अपने जीवन में अब तक केवल असफलताओं का सामना कर रहा हूँ। Didn't succeed in anything. और किसी भी चीज में मैंने कभी कोई सफलता ही पाई नहीं है। But then you read verse 3. और उसके बाद मैं तीसरा वचन पढ़ता हूँ, He will be like a tree planted by rivers of water. और वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। He will bring forth his fruit in its season. और वो अपनी ऋतु में फलता है, His leaf will not wither. और उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है। Whatever he does, he will prosper. जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल ही होता है। So God, is that possible? परमेश्वर, क्या ये संभव है? I want to be like that. और मैं ऐसा होना चाहता हूँ, But all my life I failed everything. लेकिन मेरे जीवन में हर समय मैं केवल असफलता को ही देखता आया हूँ। No fruit, no leaf, nothing. और कोई फल नहीं, कोई पत्ती नहीं, कुछ नहीं है। But your word says, लेकिन आपका वचन कह रहा है I can be like it. और मैं ऐसा हो सकता हूँ। Amen? आमीन। So what do? आप क्या करें? You take that seed. आप उस बीज को लेते हैं You have to put it into your heart. और आप अपने हृदय में उसे बो लेते हैं। Because that seed will produce. और क्योंकि वो बीज जो है वो उत्पन्न करेगा। Amen? आमीन। That seed of Psalm 1 verse 3. और वो भजन 1 अध्याय उसका तीसरा वचन
It will produce. और वो जरूर उत्पन्न करेगा It can make you like that tree. और वो उस पेड़ के समान आपको बना सकता है। God has spoken His word. परमेश्वर ने अपना वचन कहा है His word will never go back to Him void. और परमेश्वर का वचन उसके पास बिना कार्य पूरा किए नहीं जाता है। So Psalm 1 verse 3 can be fulfilled in each of our lives. और देखिए भजन 1 उसका तीसरा वचन हम सब के जीवन में पूरा हो सकता है। Is that true? और वो सत्य है, सत्य है कि नहीं है? For each one of us. और हम में से हर एक के लिए। Right? Psalm 1 verse 3 is for every person. और देखिए भजन 1 तीसरा वचन हर एक जन के लिए है। But we have to do something with that seed. और लेकिन हम उस बीज के साथ हमें कुछ करने की आवश्यकता है We must put it in our hearts. और हमें उसे अपने हृदय में बोना है। Amen? आमीन। How do you do it? आप कैसे करते हैं? Through meditation. और मनन करने के द्वारा। So you take that word, आप उस वचन को लेते हैं you read it और आप उसे पढ़ते हैं again और बार बार and again. और दोबारा से। Right? Because God said, pay attention to my word. क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे वचन पर ध्यान दिए रहना Incline your ear to my saying. और मेरी शिक्षा पर अपने कान लगाए रखना। So come back every day. God, you said, I will be like a tree planted by rivers of water. और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर आए, पास में आए, कहें प्रभु आपने कहा है, वायदा किया है, मैं उस पेड़ के समान होऊंगा जो नाली के किनारे लगाए गए हैं। Amen? आमीन। You don't just read it once, 10 years ago, forget. और ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले पढ़ा था उसके बाद भूल गए। No, you pay attention to my word. और आप मेरे वचन पर ध्यान दें Right? Think about it. और उसके बारे में विचार करें। Yes, I can be like that. और हाँ, मैं उसके समान हो सकता हूँ। So whatever you're doing, maybe you're a businessman, maybe you're in the ministry, whatever, I can be fruitful. और देखिए आप जो भी कर रहे हैं, आप चाहे व्यापारी हो चाहे सेवकाई में हो, हाँ मैं उसमें फलवंत हो सकता हूँ। I understand what it's saying. और मैं समझ रहा हूँ जो वो कह रहा है I believe God can do it. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कार्य कर सकता है You're paying attention. और उस पर ध्यान दे। Second, और दूसरी बात, you begin to see yourself like that. और आप अपने आप को उसके समान देखना शुरू करें You see this promise fulfilled in your life. और आप देखें ये वायदा आपके जीवन के ऊपर में पूरा हो रहा है। Right? आमीन। So whatever you're doing, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, you're in the ministry, आप सेवकाई में हैं you see fruitfulness in और- the ministry. और आप देखें आपकी सेवकाई के अंदर में आप फलवंत हो रहे हैं। If you're doing business, और यदि आप व्यापार करते हैं or you're working in some place, और या तो आप किसी स्थान पर कार्य करते हैं you see yourself fruitful और आप उस स्थान पर अपने आप को फलवंत देखें in your mind's eye. अपने मन की आंखों में। Are you understand? आप समझ रहे हैं? Because God told Abraham, see the stars. और क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तारों को देखो, That is a fulfillment. That's a picture of God's promise fulfilled in your life. और वो परमेश्वर के वायदे की तस्वीर है जो तुम्हारे जीवन के अंदर में पूरी होगी। See, like the sand on the seashore. और उस समुद्र के किनारे की रेत के समान। That's a picture of that promise fulfilled. और उस वचन के वायदे की परिपूर्णता की तस्वीर है वो। So in your life, आपके जीवन के अंदर you begin to see this promise fulfilled. और आप इस वायदे को अपने जीवन के अंदर में पूरा होते हुए देखने लगे। Amen. आमीन। Now remember, और याद रखिएगा, the Bible tells us, बाइबल कहती है Ephesians 3 verse 20. और इफिसियों 3 अध्याय उसका 20 वचन, What does it say? क्या लिखा है? What does it say? Ephesians 3:20. और इफिसियों 3 उसका 20 में क्या लिखा है? Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. God is able to do far more than all that we can ask or think. और देखिए परमेश्वर हमारी सोच से, हमारी विनती से कहीं अधिक
काम कर सकता है। Right? Whatever you're thinking, meaning what you can imagine, what you can see in your mind, God's able to do beyond that. और देखिए, जो हमारे विचार के अंदर में जो सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है। Amen? आमीन। So think big, imagine big. और सोचें, आप बड़ा सोचें, कल्पना करें, बड़ी कल्पना करें, See the promise of God fulfilled. और आप देखें परमेश्वर का वायदा अपने सोच में पूरा होते हुए। And third, और तीसरी बात, you speak that words. और आप उस वचन को बोलें। Right? You begin to say, I am like that tree planted by rivers of water. और ऐसा कहे, मैं उस वृक्ष के समान हो सकूं जो उन नालियों के किनारे लगा है। I will bring forth my fruit in its season. और मैं अपनी ऋतु में अपने फल उत्पन्न करूंगा, My leaf will not wither, और मेरी पत्तियां कभी सूखेंगी नहीं, and whatever I do will prosper. और जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा। You say it with your mouth. और अपने मुंह से कहें, You say it with your mouth. और अपने मुंह से इस बात को कहें। 3 things. और 3 baतें, You contemplate, you think about it, और आप उसके बारे में विचार करें, you visualize it, और उसको अपने मन में तस्वीर बना लें, and you say it. और उसको मुंह से अंगीकार करें। Amen? आमीन। Now just think about what will happen. और सोच कर देखिए क्या होगा। When people come and say, oh, you're going to be a failure, और जब लोग आकर कहते हैं कि अरे आप तो असफल ही रहोगे, what will happen? और क्या होगा? In your mind, आपके मन में, you're seeing the promise of God और fulfilled. आप परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं। They may say, और वो भले ही कहेंगे, you'll always fail. और तुम हमेशा असफल होते हो, But in your mind, लेकिन आपके मन में you have a picture of the promise of God. और परमेश्वर के वायदे की तस्वीर आपके मन के अंदर में है। And you say, no. कहेंगे नहीं, You say the promise of God. No, God said, I'm like a tree planted by rivers of water. और आप परमेश्वर के वायदे को कहेंगे, परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं एक ऐसे पेड़ के समान होऊंगा जो नालियों के किनारे लगा है, A leaf will not wither. Whatever I do will prosper. और मेरी पत्तियां कभी मुरझाएंगी नहीं, जो कुछ मैं करूंगा हमेशा उसमें सफल होऊंगा। God's word is more powerful than whatever other people might say. और देखिए, परमेश्वर का वचन लोग भले ही कुछ भी क्यों ना कहे, उनसे कहीं ज्यादा सामर्थ्य रखता है। You are protecting the seed of the word. और आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर में सुरक्षित रख रहे हैं। Amen? आमीन। When those stones come, और जब वो पत्थर आते हैं, persecution, और जो उपद्रव आता है, difficulty, और मुश्किलें आती हैं, it doesn't change. और वो बदलता नहीं है, God still said the same thing. और परमेश्वर फिर भी उन्हीं बातों को कहता रहता है, His word is still the same. और उसका वचन अब भी एक सा ही है। Amen? आमीन। So you protect that word. और आप उस वचन को सुरक्षित रखते हैं, You keep meditating in that word. और उस वचन में मनन करते You रहें, keep declaring that word. और उस वचन की घोषणा करते रहें। You've understood it, और आपने समझ लिया, you receive it, और आपने उसे ग्रहण कर लिया, and you have to retain it. और आपको उसको संभाल कर रखना भी You है, hold on to it. और उसे थामे रहें। And what will happen? और क्या होगा? That word will produce in your life. और वो वचन आपके जीवन के अंदर में फलवंत होगा ही होगा, It will come to pass. और वो जरूर पूरा होगा, 30-fold, 60, 100-fold. और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आएगा। Amen? आमीन। So like this, और इसी तरह you and I, we can meditate on different things in the word of God. और मैं और आप परमेश्वर के वचन पे कई बातों पर मनन कर सकते हैं, And build that in our lives. और उसको अपने जीवन के अंदर में निर्माण कर सकते हैं, And become strong. और मजबूत होते चले जाएं। You understood? आप समझ रहे हैं? Yes? Okay. So in the book, और पुस्तक में, I've, in the book, I've explained this a little bit more. और मैंने किताब में और थोड़ा विवरण के साथ में इसे समझाया है। So this week, और इस हफ्ता I request you to please read that book, God's Word, The Miracle Seed. और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन का चमत्कारी बीज जो है, ये And- पुस्तक को जरूर पढ़िए, And understand the things we learned today.
और उन बातों को समझने का प्रयास करिए जिसके ऊपर आज हम लोगों ने मनन किया है। All right. ठीक है, Before we close today, और आज समाप्त करने से पहले sorry, till what time this session goes? 12:30. We have 20 minutes. Okay. So we want to keep some time for any questions, anything that you want to ask on what we talked about today. और देखिए थोड़ा सा समय हम प्रश्न उत्तर का भी रखेंगे कि आज हमने जो भी अध्ययन किया है इसके ऊपर में यदि कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। Online students, you're also welcome to ask. You can unmute your mic and ask, or you can type in the chat. और जो ऑनलाइन छात्र हैं आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं। केवल आज जो हमने शिक्षा प्राप्त किया है उसके ऊपर में आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या टाइप करके भी सवाल पूछ सकते हैं। Yeah. Any questions? Yes, sir. Anything we asked today? Yes, please. Yes, sir. Sir, if you meditate on a particular verse, and after that, when you claim it in your life, and God leading you to somewhere, and you are getting some visualization, but as I work as a visualizer, an artist, so visualization is my thing. What is going on in my mind all the time? Motion graphics is going on. So how will I understand the difference between God is giving me the visualization, or I am the creator who is visualizing the things? Okay. और उनका प्रश्न ये है, क्योंकि वो एक कलाकार हैं तो कई बार उनके मन के अंदर में कई आकृतियों का विचार चलता रहता है। तो उनका प्रश्न ये है कि मैं किस प्रकार, जैसे अभी हमने सुना कि वचन को मनन करना है और कल्पना में तस्वीर बनाना है, तो मैं कैसे जानूं कि वो परमेश्वर की ओर से है या मेरे दिमाग की कोई तस्वीर है? Yeah. So that's a good question. और ये एक अच्छा प्रश्न है। Now, one is when we do it intentionally. और पहली बात, जब हम किसी चीज को सोच विचार के करते हैं, That is our imagination. और वो हमारी कल्पना, And that is also fine as long as it is based on the word of God. और जब तक वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है तब तक ठीक है। And that's what we were talking about. That's what I was encouraging. That is based on the word. You create that imagination related to your life. और देखिए वही बात हम अभी कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर आप एक कल्पना को अपने मन में अपने लिए बनाते हैं। Right? So you do that. So example, as a pastor. और उदाहरण के लिए एक पासवान के नाते, I'm not saying you have to do this. I'm just sharing what I do. और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करें, लेकिन जो मैं करता हूं आपके साथ साझा कर रहा हूं। When I'm praying, जब मैं प्रार्थना करता हूं, I take the word of God. मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं। And God says, you know, what eyes have not seen, what ears have not heard, what man has not imagined, such things God has prepared for those who love him. और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, आंखों ने नहीं देखा, चित्त में नहीं चढ़ा, मनुष्य ने कभी सोचा नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातों को तैयार करके रखा है। Daniel 11:32, God says, those who know the Lord will be strong and they will do great exploits. और देखिए दानियल 11:32 में लिखा, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो उसके लिए विस्फोटक कार्यों को करेंगे। So in my mind, these are the things I imagine and I speak for the ministry. और ये मैं अपने मन में इस प्रकार की बातों को विचार करके सेवकाई के लिए ऐसा बोलता हूँ। I say, God, we will impact 1 million lives in the city of Bangalore. और हम कहते हैं, परमेश्वर हम बैंगलोर शहर के अंदर में 10 लाख जीवन को प्रभावित करेंगे। So that's what I see and that's what I speak. और देखिए वही बात को मैं कल्पना में देखता और उसको बोलता हूँ। So that is intentional. और वो है कि मैं सोच विचार के उसको बोलता हूँ। God, we will have thousands of churches all around India. और भारत भर में हम हजारों कलीसियाओं को रोपण करेंगे। Thousands of churches around the world. और संसार भर के अंदर में हजारों कलीसियाओं का रोपण किया जाएगा। So why'd you do that? और क्यों करते हैं ऐसा? Because God can do beyond what we ask or think. और क्योंकि परमेश्वर जो हमारी विनती और मांगने से बढ़कर काम कर सकता है। Right? So that is intentional. I
based on the word of God, I'm painting those pictures and speaking those words. और देखिए वो मैं अपने सोच विचार के द्वारा परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने मनों में उस तस्वीरों को बनाता हूं और उन्हें बोलता हूं। The second one comes by inspiration. और दूसरा जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा आता है। So when God speaks to us, और जब परमेश्वर हमसे बात करता है, He also speaks to us through pictures. और परमेश्वर हमसे अब तस्वीरों के द्वारा बात करता है। Yeah. Job chapter 32, verse 8. और अय्यूब उसका 32 उसका 8 It says, there is a spirit in man, और वो कहता है कि मनुष्य के अंदर में आत्मा है and the inspiration of the Almighty gives them understanding. और पर सर्वशक्तिमान की जो प्रेरणा है वो उसे समझ प्रदान करता है। Then Hosea chapter 12, verse 10. और होशिया उसका 12 उसका 10 God says, when I speak, और परमेश्वर कहता है जब मैं बोलता हूं I speak by visions and symbols. और वो कहता है मैं दर्शन और चिन्हों के द्वारा बात करता हूं। So even when God speaks, when inspiration comes, He uses visuals, visions, symbols. और देखिए pictures. जब परमेश्वर भी बात करता है या हमें प्रेरित करता है तो परमेश्वर दर्शनों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा हमें बात करता है, प्रेरित करता है। Right? So that is prophetic inspiration. और इसका अर्थ है कि वो भविष्यद्वक्ता या चिन्ह है, भविष्यवाणी मात्र चिन्ह है। Right? So one is something you do intentionally based on the promises of God. और एक जो परमेश्वर के वचन के आधार पर आप सोच विचार करके करते हैं, You're painting pictures based on the word of God. और आप परमेश्वर के वचन के आधार पर किसी तस्वीर को बनाते हैं। The other is by inspiration, the Holy Spirit gives to us. और दूसरा है आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्राप्त करते हैं। The Holy Spirit speaks through visions and dreams. पवित्र आत्मा स्वप्न दर्शनों के द्वारा बात करता है। Acts chapter 2, 17, 18. और प्रेरित दूसरा अध्याय उसका 17 और 18 वचन। When God pours out His Spirit, what will happen? Young men will see visions, old men will dream dreams. और जब परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेलेगा तब क्या होगा? जवान दर्शन देखेंगे और बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। So when we are creating or we are initiating these imaginations, very important, it has to be aligned to the word of God and aligned to God's will for our lives. और देखिए जब हम किसी आकृति को बनाते हैं, विचार करते हैं, तब ये महत्वपूर्ण बात होती है कि हर एक विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। Amen? आमीन। And the other one, of course, the Holy Spirit gives to us by inspiration. और दूसरा पवित्र आत्मा अपनी प्रेरणा के द्वारा हमें देता है। Good. Any other questions? Anything that we spoke about today? और जो भी आज हमने बात किया है उसके बारे में यदि कोई प्रश्न है? How do we very practically apply this in our life? Like how many hours, what will we go chapter by chapter? We start at the beginning. So like, what should we follow? और तो व्यवहारिक रीति से हम कैसे इसका अपने जीवन के अंदर में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अध्याय दर अध्याय पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, किस बात पर मनन करना चाहिए, ये उनका सवाल है। So in this book, I'll just borrow your book. If you go to page 'you'll see a table. I'm just trying to find that page. I don't know what page it is in the English book. और देखिए आप किताब में देखेंगे तो एक टेबल बनाकर दिया गया है। Page 62 in the Hindi book. और हिंदी की पुस्तक में 62 नंबर के पेज पर है। In English book, 62 इंग्लिश 50. Okay. So there's a table there. और वहां पर एक टेबल बनाया गया है। This is just to share what I used to practice in my life. और देखिए ये इसलिए बांटा गया है कि जो बात मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करता हूं उसको मैंने लिखा है। I'm not saying you have to do the same thing. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ठीक वैसा ही करना है।
I'm just saying, sharing my experience. और मैं केवल अपना अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। So how did I apply this in my life? और देखिए मैं कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका उपयोग करता हूँ। So the way I discipline myself is every day of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, और देखिए हफ्ते के प्रत्येक दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, प्रतिदिन में I would, each day I would meditate on one or two topics that for that day. और मैं प्रत्येक दिन में या मैंने जिस दिन के लिए जो विषय निर्धारित किया है, एक बिंदु या दो विषय मैं उस पर मनन करता हूँ। And I had scriptures on those topics. और उन विषयों के ऊपर मैं वचन अध्ययन करता हूँ। Right? And I would meditate in those scriptures. और उन वचनों को मैं मनन करता हूँ। So, example, on authority और उदाहरण के लिए अधिकार के ऊपर में and faith. और विश्वास में, So two topics. और ये दो विषय हैं। I'll meditate in scriptures on our authority and on faith. देखिए मैं अधिकार पर और विश्वास दोनों विषयों के ऊपर वचनों के साथ मनन करता। Then another day और अगले दिन on healing और चंगाई पर and answer to prayer. और मेरी प्रार्थना के उत्तर पर। So like that, I give the table. Different days I will do different things. और देखिए उसी प्रकार मैंने वहां पर एक टेबल बनाया है और हर दिन में अलग अलग विषयों को वह अंकित किया है वहां। Now, based on that, we have made our church app. देखिए उसके आधार पर हमने अपनी कलीसिया का ऐप बनाया है। So many of you may have downloaded our app. It's available in Hindi and English. और देखिए आपने बहुत सारे लोगों ने ऐप डाउनलोड किया होगा, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। So if you go to the toolkit section on the app, there's something called Faith Builders. और देखिए अगर आप टूल किट्स में जाएंगे तो वहां पर विश्वास निर्माण कर बनाने वाले के एक भाग है। And then from A to Z, there are topics. और वहां पर अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक बहुत सारे विषय दिए गए हैं। And there are scriptures on each of those topics. और उन सभी विषयों के ऊपर में वचन भी दिए गए हैं। So this is actually built on my own practice. और ये जो है मैं जो अभ्यास करता हूँ उसके आधार पर बनाया हुआ है। So I would take some time from A to Z, I will speak the word. और मैं कुछ समय लेता हूँ और ए से जेड तक, आ से ज्ञा तक जो वचन है मैं उनको बोलता हूँ। Because this is what the Bible says about me or about my life. I will speak the word. और क्योंकि बाइबल मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में जो बोलता, मैं उन वचनों को बोलता हूँ। So in terms of meditation, I would meditate on one or two topics each day. और यदि मनन की बात करें तो एक या दो विषय के ऊपर प्रतिदिन मैं मनन करता हूँ। In terms of declaration, A to Z, say a few verses on each of this. और देखिए अगर घोषणा करने के बारे में कहूँ तो आ से ज्ञा तक कुछ वचनों को लेकर मैं वहां घोषणा करता हूँ। Yeah, and everything is in the app, easy for you on your phone. और देखिए हर बहुत सारी बातें जो हैं ऐप में मौजूद हैं, बड़ी आसान है, आप फोन पे हर चीज उपलब्ध है। So even I use the app now. और देखिए मैं भी अब जो है ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। So you have the Hindi app and the English app. So same thing, the same verses are there. और देखिए बिल्कुल अंग्रेजी और हिंदी में ही है। So that's how I apply what we have learned today in my life. और देखिए जो आज हमने सीखा है वैसे ही मैं अपने जीवन के अंदर में भी उसे लागू करता हूँ। So today, these days also, when I feel, okay, today I need to meditate on something, a particular theme, a topic, I go meditate on those scriptures. और देखिए आज भी अगर मुझे लगता है कि मुझे इस विशेष विषय के ऊपर में मनन करने की आवश्यकता है तो मैं उस विषय पर जाता हूँ, वचनों को घोषणा करता हूँ, मनन करता हूँ। Yeah. So you can follow that example, or you can come up with something that is useful for you. What God gives you the idea, you can practice that. और देखिए जो दिया गया है आप उसको अनुसरण कर सकते हैं, या तो फिर परमेश्वर आपको कोई तरीका बतलाता है तो आप अपने आत्मिक जीवन के लिए उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Any other questions? कोई और प्रश्न अमित के पास? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की
युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड से आते हैं, उसी बीच से होके आए हैं। तो हमें उनका जो हम लोग को दोस्ती यारी है, संग दोस्ती यारी है, तो उनका बीच में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे कि नए नियम में यीशु मसीह हर पापियों का बीच में गया, छूत लोग के पास, व्यभिचारी के पास गया, गुंडा लोग के पास गया, है ना? तो हम लोग का उनका बीच में रहना है या नहीं रहना है? saying that we have come from the same community. Yeah, so we have to understand it correctly. और यहाँ थोड़ा सही रीति से समझने का प्रयास करना है। All right, so we are going to learn how to understand scripture correctly. और हम यही सीख रहे हैं कि वचन को सही रीति से हम कैसे समझें। So let's understand one principle. और एक नियम समझें। Every scripture और हर एक वचन must be interpreted in the light of the rest of scripture. और हर वचन का जब हम व्याख्यान करते हैं या अर्थ बताते हैं तो बाकी सारे वचनों के प्रकाश में ही हमें उसका व्याख्यान करना है या अर्थ बताना है। Right? So for example, just like Amit was sharing, और जैसे उदाहरण के लिए अमित ने जैसा कहा, suppose we take that verse 2 from Psalm 1. और जैसे हम भजन 1 से दूसरा वचन लेते हैं, God said, He doesn't sit in the seat of the scornful. और जैसा परमेश्वर ने कहा कि पापियों की मंडली में नहीं, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना He है, doesn't walk in the way of sinners. और पापियों के मार्ग में नहीं चलना है। So imagine if one pastor stood up, और सोच कर देखिए एक पासवान खड़े हो जाएं he tells his congregation, और वो अपनी सभा मंडली में कहते हैं, see what is written in Psalm 2, 1 verse 2. और देखो भजन 1 के 2 में क्या लिखा है, So from tomorrow, all of you must come and stay in my house. और कल से सभी को अपने अपने घर छोड़कर मेरे घर में रहना चालू करना Because पड़ेगा। everyone else outside are sinners. और क्योंकि बाकी सब बाहर तो पापी हैं, You must not sit with them. और आपको उनके साथ नहीं बैठना You है, must not walk with them. और उनके साथ नहीं चलना है। You must only stay here, and maybe he'll make one little compound and say everybody stay inside. और हो सकता है कि पास्टर एक छोटा सा कंपाउंड बना लेगा और बोलेगा कि सभी को इसी कंपाउंड में रहना है, बाहर नहीं जाना है। Is that correct interpretation of the words? और क्या ये परमेश्वर का वचन का सही व्याख्यान या सही अर्थ है? We have to ask the question, और हमें प्रश्न ये पूछना है, what else does the rest of the scripture say और बाकी का पूरा वचन क्या बोलता है about this? और इसके बारे में? For example, और उदाहरण के लिए, I'll just say it very quickly. I know time has gone. I wanted to pray, but anyway, very quickly. और For जल्दी से बोलूंगा। example, in John 17, Jesus said, और यूहन्ना 17 में यीशु ने कहा, I'm sending them into the world, और मैं संसार में उन्हें भेज रहा हूं, but they are not of the world. लेकिन वो संसार के नहीं है। So he's saying, go, और वो कह रहा है जाओ, but don't become part of it. और लेकिन उसके भाग मत बनो। Right? Bible tells us that we must not be unequally yoked with unbelievers. और बाइबल हमें कहती है कि अविश्वासियों के जुए में उनके समान हमें नहीं जुटना है। We have to come out. This is 2 Corinthians 6. We have to come out and be separate. और देखिए दूसरे को 6 में लिखा है कि हमें बाहर आना है और उनसे अलग होना है। And yet at the same time, Jesus said, go. और देखिए उसी समय पर यीशु मसीह ये भी कह रहा है कि तुम्हें जाना है। Right? So we put all of these scriptures together. Many other scriptures we can think about. और बहुत सारे वचनों को हम एक साथ में सोच सकते हैं। What does the Bible say? बाइबल क्या कह रहा है? We have to be like salt and light. और हमें नमक और ज्योति के समान होने की आवश्यकता है। So we have to be in the world, और हमें संसार में तो होना है, but not of the world. लेकिन संसार के सदस्य नहीं होना We है। have to be there, और हमें वहां तो होना है, but we have to influence the world, लेकिन हमें संसार को प्रभावित करने वाला होना है, not partake in their activities. लेकिन उनके कार्यों में सम्मिलित होने वाला नहीं होना है। Understand? समझ So, रहे हैं? so that is how when we interpret scripture, one verse has to be interpreted in the light of what the rest of scripture says
on the same subject. और देखिए, जब हम किसी वचन की व्याख्यान या अर्थ बताते हैं तो हमें बाकी उसी विषय के बारे में जो वचन कह रहे हैं उसके प्रकाशन में उस अर्थ को समझने और समझाने की आवश्यकता है। Right? So we're going to learn those things in the next few days. और अगले कुछ दिनों में हम इन सारी बातों के बारे में सीखेंगे। ठीक है? So good? Right, let's just stand and pray. I know we are almost out of time, but we'll take a few minutes to pray. आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा समय है लेकिन हम उसमें प्रार्थना में बिताएंगे। Those of you online, you just pray with us, please, wherever you are. और जो ऑनलाइन हैं, आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। प्रार्थना करें अपने अपने स्थानों पर। Yeah, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we just thank you for the time today. पिता, हम आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And Father, we just ask that by your Spirit, हम मांगते हैं परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा, you'll help us understand these things और प्रभु आप सहायता करिए इन बातों को समझने के लिए, and help us apply your word in our lives. और प्रभु आप सहायता करिए कि हम आपके वचन के ऊपर अपना ठिकाना पाएं। Holy Spirit, I invite you to write these truths on the table of each of our hearts. और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि इन बातों को हमारे हृदय की पटिया पर आप अंकित कर दें, And show us, each one of us, how to apply this in our lives. और हम में से हर एक जन को आप इस बात को दिखलाएं कि कैसे हम अपने जीवन में इन्हें लागू कर सकें। Make these truths very personal to us. और प्रभु इन सत्यों को हमारे जीवन में आप व्यक्तिगत बना दें। We thank you, oh God. और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद, Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद आपका। Everybody just pray in tongues for a minute or two. Just pray in tongues. और please. हर एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करें। 1 मिनट और 2 मिनट जितना भी समय प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Father, we praise you. Father, we praise you. We praise you, Jesus. Thank you, God. Oh, we bless your holy name. We bless you. We bless you. We bless you. We bless you. Thank you, God. Thank you. Thank you. धन्यवाद। Amen. आमीन, Amen. Amen. आमीन। All right. You can go for your little break. We're done for today. और आज के That's लिए हम it, Ron. समाप्त कर चुके हैं। अब अपने भोजन के लिए जा सकते हैं। Okay.